in this class, we will talk about a very important technique of imaging the upper urinary tract, that is intravenous urography. Let us decode intravenous urography in this class. What do we stand for intravenous urography? What we will do, that we will inject the contrast into a person, into the patient, IV, intravenously, and then we will let the kidneys excrete that contrast, and we will image the kidneys and the urinary tract when that comes into the excretory system. So we will talk about the principles of protocol, the protocol, and whatever the images give us. So first of all, we will start with the indications. What are the indications for IVU? First one of them is, and most common of them is, urolithiasis and obstruction. As most of you must be having a lot of patients who may be coming with a calculus, and that calculus often lead to obstruction, high level of pain, hematuria. So these are the conditions. Patient is not going to settle. Pain is not going to settle, and the patient will be requiring some treatment from you, and you cannot treat if you don't know the diagnosis. So investigating this suspected kidney stones, ureteric fistula, strictures that will obstruct the urinary flow, obstruction के cases में. Then persistent और frank hematuria. किसी को अगर blood in urine आ रहा है, यूरिन के साथ blood आ रहा है और इमेजिंग से हमें कुछ पता नहीं चल रहा, so what we'll do, we will do the IVP, IVU, and देखेंगे कि डायग्नोसिस क्या है, फिर उसको ट्रीट करेंगे. देन in cases of renal infections, most common of them is tuberculosis. IVU remains gold standard for imaging the renal tuberculosis uniquely. Pertaining to that, it is capable of detecting early changes like fuzziness, irregularity of cheilitis, and papillary necrosis. So these are the changes सबसे ज़्यादा हमें इसी पे देखने को मिलेंगे. Then we can see the overall, we can see by this technique, we can see the overall system anatomy कि किसी को anatomical variations तो नहीं है. We can have the global view of renal parenchyma. किसी को अगर small sized kidney होती है तो वो भी पता चल जाएगा. किसी को अगर ectopia होता है तो वो भी पता चल जाएगा. renal agenesis है तो वो भी पता चल जाएगा. So we will talk about the normal variants here. कि वेरिएंट एनाटमी तो नहीं है किसी को. देन देखेंगे कि होता क्या है. हमारे पेशेंट को कंट्रास्ट देने से होता क्या है, जो कि हम कंट्रास्ट दे रहे हैं IVU में या IVP में क्यों दे रहे हैं. इंट्रावेनस यूरोग्राफी. व्हाट इज़ इंट्रावेनस यूरोग्राफी? इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्लेन फिल्म्स हम प्लेन ले रहे हैं. पहले हम पेशेंट को कंट्रास्ट दे रहे हैं, IVUs को कंट्रास्ट दे रहे हैं, और फिर जैसे नॉर्मल एक्सरे लेते हैं, हम एक नॉर्मल KUB एक्सरे ले रहे हैं. टेकन आफ्टर इंट्रावेनस यूरोग्राफी इज अ सीरीज ऑफ प्लेन फिल्म्स टेकन आफ्टर द इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ अ वाटर soluble iodinated contrast medium. The diagnostic power of IVU lies in tracking this medium as it travels through the bloodstream, फिर फिल्टर आउट होता है बाय किडनीज एंड देन इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट. तो इससे क्या होता है कि हमें सारी यूरिनरी ट्रैक्ट की डायनामिक पिक्चर मिल जाती है. डायनामिक पिक्चर का क्या है कि रियल टाइम, साथ के साथ टाइम के साथ क्या हो रहा है, कब कंट्रास्ट जो है किडनीज में है, कब जो है वो कलेक्टिंग सिस्टम में आ गया, कब जो है यूरेटर में आ गया. सो दैट इज टाइम टेस्टेड टेक्निक. तो हम बात करेंगे कि मतलब ऐसा क्या दिखता है हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द नेफ्रोग्राम फेज. टाइम टेस्टेड टेक्निक की बात करेंगे कि ऐसा क्या डायनामिक दे रही है हमें ये टेक्निक.
सबसे पहले हमें दिखता है पेरेन्काइमा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल विजुअलाइज द पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा में हमें क्या दिखेगा कि नेफ्रोग्राम फेज हम लेंगे कब? अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट पोस्ट इंजेक्शन. क्या होता है कि 12 से 20 सेकेंड के बाद कंट्रास्ट रीचेज द रीनल आर्टरीज. आपने कंट्रास्ट दिया, आपने कोई भी वेन कैनुलेट की, वहाँ से आपने कंट्रास्ट दिया, कंट्रास्ट गया ये राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया एओर्टा में, एओर्टा से गया L1 L2 के लेवल पे रीनल आर्टरीज में, रीनल आर्टरीज से गया कहाँ पे? रीनल आर्टरीज से जब वो जाएगा तो वो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन हो गया. फर्स्ट मिनट में क्या हो गया कि डिफ्यूज एनहेंसमेंट ऑफ किडनीज विल बी देयर एंड दैट वी विल कॉल एज नेफ्रोग्राम फेज. कि किडनीज सारी ही इन्हेंस होगी क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, किडनी सारी इन्हेंस होगी. तो व्हाट इट विल डू, इट विल प्रोवाइड कि आपकी किडनी एज अ होल कैसी दिख रही है. We will evaluate the length of the kidney. We can evaluate the total span of the kidney कि साइज़ कितना है. साइज़ के लिए क्या है कि the kidney, a normal kidney measures the length of 3 to 4 normal lumbar vertebral bodies. Actually क्या है? It is 3 to 4. Let me write 3 to 4. मतलब it should be 3 बट नॉट मोर देन 4. अगर मोर देन 4 होगा तो मेगैली हो जाएगी. सो इट शुड बी 3 बट नॉट मोर देन 4 ऑन IVU. फिर क्या है? फिर आता है द पाइलोग्राम फेज. कि आपने 1 मिनट पे ले लिया. पाइलोग्राम फेज में क्या दिखता है हमें? उसमें हमें रीनल पेरेन्काइमा दिख रहा था. वी वर सीइंग द रीनल पेरेन्काइमा हेयर. नेफ्रोग्राम फेज में पेरेन्काइमा हमने देख लिया. फिर हम पाइलोग्राम पे आएंगे. पाइल मीन्स व्हाट? पेल्विस. तो पेल्विस तो कलेक्टिंग सिस्टम में आता है ना. पेल्विस कम्स इन कलेक्टिंग सिस्टम, दैट इज़ वाई इसको पाइलोग्राम नाम दिया गया. पाइलोग्राम फेज में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट इज टेकन अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट्स पोस्ट इंजेक्शन. 1 मिनट के बाद से क्या होगा कि कंट्रास्ट बिगिंस टू अपीयर इन द कैलाइसिस में आ जाएगा, फिर रीनल पेल्विस में आ जाएगा और फिर यूरेटर्स में आएगा. 1 मिनट के बाद ये होगा. इसीलिए हम अपना नेफ्रोग्राम फेज जिसमें पूरी किडनी हमें दिख रही थी वो 1 ही मिनट पे ले रहे थे, क्योंकि 1 मिनट के बाद तो कंट्रास्ट किस में आ जाएगा? कैलाइसिस में आ जाएगा, फिर पेल्विस में आ जाएगा. फिर क्या है कि इस इमेज में दिखेंगे हमें नॉर्मल यूरेटर्स दिखेंगे. ठीक है. तो कभी कभी क्या होता है कि यूरेटर हमें कितना दिखे? एक इमेज, मानो हमें सिर्फ किसी इमेज पे सिर्फ इतना ही यूरेटर दिखा है, वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल और नोट. अगर इतना दिखा है तो वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल. सो द रीज़न फॉर दैट इज़ कि यूरेटर हमें कॉन्टिन्यूड पेरिस्टालसिस दिखाता है. तो पेरिस्टालसिस से क्या होगा कि कंट्रास्ट नीचे नीचे जाता रहेगा. तो कभी कभी टाइमिंग ऐसी हो सकती है कि हमें पूरे यूरेटर में कंट्रास्ट ना दिखे. सो फॉर दैट रीज़न एंटायर लेंथ आपको ना दिखे तो चलेगा. एंटायर लेंथ ऑफ बोथ यूरेटर्स इन अ सिंगल फिल्म इट इज़ not always possible. Partial visualization is often acceptable. So that is acceptable. जो भी ये हमें अगर कम दिखेगा so that is acceptable. फिर हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन क्या करनी है हमें IVU के लिए. what we have to do, प्रिपेयर कैसे करना है हमें, पेशेंट कैसे प्रिपेयर करना है. हाइड्रेशन इज़ मस्ट, क्योंकि हमें किडनी को कंट्रास्ट देना है, हमें पेशेंट को कंट्रास्ट देना है जो कि किडनी एक्सक्रीट करेगी. किडनी एक्सक्रीट कैसे करेगी? किडनी को एक्सक्रीट करने के लिए हाइड्रेशन होना चाहिए प्रॉपर. अगर यूरिन ही नहीं बनेगा तो कंट्रास्ट कैसे एक्सक्रीट होगा? सो वन थिंग इज़ दिस दैट
Dehydration is contraindicated and that is very much important. पहले क्या होता था कि लोगों ने कहा कि भाई आप पेशेंट को डिहाइड्रेट कर दो तो अच्छा आईवीयू होगा. दिस वॉज द सेइंग इन अर्लियर टाइम्स. लेकिन फिर देखा क्या गया कि हमने पेशेंट को अगर डिहाइड्रेट किया है तो फिर कंट्रास्ट की नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है एंड हेंस डिहाइड्रेशन शुड बी करेक्टेड बिफोर द प्रोसीजर. पेशेंट शुड बी वेल हाइड्रेटेड. अगर आपका पेशेंट ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है ड्यू टू एनी रीज़न, उसको डायरिया हो गया, उसको कोई और बीमारी थी, तो आप पहले क्या करेंगे, आईवीयू करने से पहले यू विल करेक्ट डिहाइड्रेशन फर्स्ट एंड देन गो फॉर आईवीयू, क्योंकि हमें कंट्रास्ट देना है. कंट्रास्ट एक्सक्रीट भी तो होना चाहिए. फिर देखेंगे कि प्री प्रोसीजरल चेकलिस्ट हमारे पास क्या है, कि प्रोसीजर करने से पहले क्या है. फास्टिंग करानी है पेशेंट से. पेशेंट शुड अवॉइड फूड फॉर 4 to 6 hours प्रायर टू द एग्जामिनेशन. बावल प्रिपरेशन होनी चाहिए. लेग्जेटिव पेशेंट को दिया जाना चाहिए टू अवॉइड गैसेज ओवरलाइंग द रीनल शेडोज़. कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया लेकिन यहाँ पे गैसियस शेडोज़ बहुत हैं, तो कंट्रास्ट हमें दिखेगा कैसे, ऑब्सक्योर कर सकते हैं बाउल गैसेस उसको. फिर है कि प्रिलिमिनरी रेडियोग्राफ. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिलिमिनरी रेडियोग्राफ, कि एक बार और एक्स्ट्रा क्यों पेशेंट को रेडिएशन देना है. ठीक है, तो KUB क्या है, इट इज़ प्रिलिमिनरी KUB इज़ मैंडेटरी टू असेस बाउल प्रिपरेशन. क्या पता पेशेंट बाउल प्रिपरेशन हो ही ना, या फिर आपने एक्सपोजर फैक्टर्स और पोजीशनिंग गलत कर दी हो, तो आप सारा प्रोसीजर ही गलत हो जाएगा आपका. आप कंट्रास्ट दे दोगे, एक्सक्रीट तो हो जाएगा लेकिन आपकी इमेज अच्छी नहीं आएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक अ प्रिलिमिनरी इमेज कि हमने जो भी करना था वो सही किया है कि नहीं किया है. देन वी विल गिव द कंट्रास्ट एंड विल असेस फॉर दैट थिंग. और कैलकुलाई, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता पेशेंट को कोई कैल है कि नहीं है, बाद में वो एज अ फिलिंग डिफेक्ट दिखेगी तो वो पहले दिख जाती है. देन व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसीजर रिगार्डिंग पेशेंट सेफ्टी, बिकॉज पेशेंट सेफ्टी इज नॉन नेगोशिएबल. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक रीनल फंक्शन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट in case of any procedure involving contrast, intravenous contrast, सॉरी ओरल में आपको नहीं देखना है क्योंकि ओरल का मोड ऑफ एक्सक्रीशन अलग है. चेक रीनल कंट्रास्ट. व्हाट डू वी डू, वी विल असेस द ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन. व्हाई, बिकॉज the risk of contrast induced nephropathy increases if serum creatinine is 1.5 more than 1.5 milligram per deciliter. और अगर पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन इन एनी केस कि उसको लॉन्ग टर्म से कोई बीमारी चल रही है कि पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन इज़ मोर देन 3.5 mg per deciliter, तो क्या होगा कि विजुअलाइजेशन ही नहीं दिखेगी, किडनी वो कंट्रास्ट एक्सक्रीट ही नहीं करेगी. सीरम क्रिएटिनिन ज़्यादा है, किडनी ऑलरेडी काम नहीं कर रही है, तो किडनी कंट्रास्ट एक्सक्रीट ही नहीं करेगी. आपने जो कंट्रास्ट दिया वो वहीं रहेगा. किडनी एक्सक्रीट नहीं करेगी तो आपको इमेजेस पे दिखेगा क्या. दैट इज़ वाई सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसीजर. देन we will elicit allergy history. Before injection, a thorough history of previous reaction to contrast exposure must be taken. अगर एलर्जी की हिस्ट्री उसको रही होगी और सेम कंट्रास्ट आपने दे दिया, वो कंट्रास्ट उसको वापस से क्या करेगा, एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स टू द एलर्जन. मतलब एक चीज़ से उसको पहले एलर्जी थी, पहले उसका रिस्पॉन्स कम आया होगा, लेकिन दूसरी बार वो एंटीजन जब पेशेंट की बॉडी में जाएगा तो दैट पेशेंट विल गेट इनटू एनाफाइलैक्टिक शॉक एंड दैट पेशेंट विल डाई ऑन द टेबल. So next is secure IV access. Why do we need to secure IV access? First of all तो क्या है कि पहली बात तो हम कंट्रास्ट ही उससे देंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो आपका IV एक्सेस है वो पूरे प्रोसीजर के टाइम पे ऐसे ही लगा हुआ होना चाहिए. जो भी आपने पेशेंट को कैनुलेट किया है वो वहीं पे होना चाहिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दैट इज़
कि कोई इमरजेंसी अगर हो जाए, पेशेंट को अगर रिएक्शन हो जाए, एनाफाइलैक्सिस हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा उसी टाइम पे, उसी के साथ, एंड ट्रीटमेंट दिया जाएगा इंट्रावीनसली। एंड वो एनाफाइलेक्टिक शॉक आपको इतना टाइम नहीं देगा कि आप पेशेंट को दोबारा कैनुलेट करो और फिर वो ट्रीटमेंट दो, तब तक पेशेंट जा चुका होगा। सो दैट इज़ वाई IV access is mandatory. IV access is mandatory for any procedure which is involving the administration of intravenous contrast to the patient. Next is be prepared कि emergency drugs, ऑक्सीजन और रिससिटेशन इक्विपमेंट आपके पास होना ही होना चाहिए इंट्रावेनस यूरोग्राफी रूम में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो भी कंट्रास्ट की वजह से होती हैं दे अकर विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स। तो अगर उस टाइम पे आपके पास ये सारा सामान नहीं है तो आपका पेशेंट फिर आप नहीं बचा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेडियोलॉजिस्ट प्रेजेंस, कि एक रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे रूम में होना ही होना चाहिए ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसीजर। The reason for that is कि in case of any mishappening, in case of any contrast reaction, there should be someone जिसने ये सब देखा हो, जो इसको handle कर सके. Then I think we can divide the class into two topics. This is getting longer. So we will talk about the imaging sequences in next class, the techniques regarding that. So we will do it in next class.